કૃષિ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી પ્રસ્તુત છે ખેડૂત મિત્રો માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી. કાર્યક્રમ સાંભળતા સૌ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોને કેતન રાવલ તેમજ પાલુ રાવલના નમસ્કાર. શ્રોતા મિત્રો, આજના કિસાન વાણી કાર્યક્રમમાં આપ સાંભળશો નર્સરીની માવજત આ વિષય પર કેન્દ્રીય બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર વેજલપુર ખાતે ફરજ બજાવતા ડોક્ટર નિહાલસિંહ સાથેની મુલાકાત. જેમની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે આકાશવાણી ગોધરાના કાર્યક્રમ વડા મૌલિન મુનશી. મીઠી, હા ઉનાળામાં છે ને હા આપણે ઘરેથી કહીએ જઈએ ને તો પેટમાં કશું પધરાઈને નીકળવાનું. હા, આપણે જમીને તો જઈએ જ છે ને. જમીન તો જઈએ પણ બરાબર પાહુ ભરપેટ નહીં જમવાનું. હા, ભરપેટ તો ના જમાય હો ને, કે પાછી વોમિટ થઈ જાય. પધરાવાનું કરીને ખાસ કરીને ઉનાળાની અંદર છે ને પ્રવાહી પેટમાં હોવું જોઈએ. તો દાળ ભાત, આ પ્રવાહી દાળ ભાત થાય. દાળ પ્રવાહી જ કહેવાય ને. એ તારી દાળ તો ખરેખર પોણી જેવી જ હોય છે, પ્રવાહી. આટલી આપણે દાળ પકાઈ છે તોય તારી દાળ છે ને એકદમ પોણી જેવી હોય, એટલે તું તો દાળને પ્રવાહી કહે. દાળ તો ઓછી જ બનાવાય, નકર ફેંકવી કેટલી પડે. અરે પણ મીઠી, એ વાત તો બરાબર છે, પણ પ્રવાહી એટલે શું ખબર છે? શરબત. શરબત. અને શરબત કેટલી જાતનો હોય? બહુ બધા જાતના હોય છે. હો, શેરડીનું શરબત, લીંબુનું શરબત, પછી બજારમાં તૈયાર બોટલ મળે એ બધા. પણ મીઠી, આપણા ગામડાના માણસને તો જો લીંબુ અને કાચી કેરીનું શરબત. હા, કાચી કેરીનું તો બહુ સરસ બને છે. તો કાચી કેરીનું શરબત અને લીંબુનું શરબત તારે છે ને આ ઉનાળામાં હું ગમે તે જાઉં ને એટલે મને એક મોટો ગ્લાસ ભરીને બનાવીને આલી દેવાનો. બનાવીને તો આપી દઉં, પણ લીંબુ જ નથી તો. લીંબુ નથી? ના, નથી. મીઠી, આ લીંબુ અત્યારે તો મોંઘોય ઘણો છે, એટલે વેચતો લાવોય આપણને ઘણી વખત એમ પરવડતો નહીં. કાચી કેરીનું બનાવી દે. પણ કાચી કેરીનું રોજ ના ભાવે ને. અરે રોજની વાત તો નહીં, આજે તો કાચી કેરીનું બનાવ. કાચી કેરી જ નથી ને. કાચી કેરી નહીં? ના, ખેતરમાંથી કોઈ લાવી જ નથી. ઓહો હો હો હો. એવું કરજો, શહેરમાં જજો ને શેરડીનો રસ પી લેજો. પણ એ તો શહેરમાં પહોંચું તારે શેરડીનો રસ પીવું ને, પણ ઘેરથી શહેર સુધી પહોંચવાની મેં ગાડી આપણા પેટમાં કંઈક હોવું જોઈએ ને પ્રવાહી. હા, હોવું તો જોઈએ. તો આપણે શું બનાવું? અરે કશુંક તો બનાય. તરબૂચ ખાવું છે? તરબૂચે ચાલે. હા, તરબૂચ છે. તરબૂચ એ પ્રવાહી. આમ તો કહેવાય તરબૂચ ખાવાનું, પણ ખરેખર તો પાણી જેવું જ હોય છે. તરબૂચ પીધું એમ કહીએ ને તોય ચાલે. હા, એનું પણ શરબત બને. હો, એનું શરબત તો બને, એને ખાઈ નાખો ને ટુકડા કરીને તો એમાં પાણી જ હોય છે. તો આપી દઉં. તરબૂચ તો ખાઈશું, પણ મીઠી આ વર્ષે તો આપણે ભૂલ થઈ કે ભાઈ વાડામાં લેબી નહીં, ઓંબો નહીં, એટલે કેરી નહીં. ખેતરમાં તો છે, પણ આપણા વાડામાં ઓંબો રોપ્યો હોય ને તો આપણે વાડામાં એક કાચી કેરી મળી રહે. તો આપણે કાચી કેરી માટે ઓંબો અને લીંબુ માટે લીંબુના છોડ રોપીએ. છોડ તો રોપવાનું કહ્યું તું જ ને. હું તો તમને કેટલા વર્ષોથી કહું છું, રોપી દો ને રોપી દો. નહીં કહેતી? મારે તો જીવ ભરી જાય એટલે બીજી જગ્યા ખાલી પડેલી દેખીને. પણ મીઠી, આ છોડ હું બજારમાં લેવા જાઉં છું ને તારે એનો ભાવ સાંભળીને પાછો આવું છું. પણ આપણે કોઈ જગ્યાએ સસ્તું મળે ને ત્યાંથી લાવવાનું. અરે સસ્તું તો મળે છે, પણ તો મીઠી એ આપણે ઘણીવાર મોંઘું પડે, કારણ કે આપણે તો પેલું ઘેર પેલો આંબો ઉછર્યો હોય ને વરહાદમાં ગોટલામથી એ રોપી દીધો હોય, એટલે પેલો કલમી આંબો લેવા જઈએ ને 80 રૂપિયા, 200 રૂપિયા, 300 રૂપિયા, હવે જુદો ભાવ બોલે. હા, 1000 રૂપિયા હોય છે. મોટા આંબાના 1000 રૂપિયા લેશે. પણ મીઠી, એ બધું આપણને મોંઘું પડે. એટલે મેં છે ને એક કલમ બનાવવાની પદ્ધતિ શીખી લીધી છે. એ કેવી રીતે પાછું? કલમ એટલે ખબર તને? મેં સાંભળ્યું ખરું કંઈક. કલમ એટલે હું એ સાંભળ્યું છે. હા, સાંભળ્યું જ છે. અરે આ તારા હાથમાં પેલો મોબાઈલ છે ને, હા, ટચ સ્ક્રીન વાળો, હા, એમાં ખાલી છે ને લીંબુની કલમ, ઓંબાની કલમ એટલું અંદર છે ને પેલું સર્ચ કરજે. કલમ એકવાર સર્ચ કર્યું તું, તો પેલી બોલ પેન આવી ગઈ હતી. ઓહો, એને કલમ કહેવાય. બરાબર છે. હા, કલમ લખ્યું તો કલમ આવી ગયું. પણ મીઠી, આપણે આગળ પાછળ બધું બોલવાનું કે ઓંબાની કલમ બનાવવાની રીત, લીંબુની કલમ બનાવવાની રીત, તો એ આખું ચિત્ર સાથે બતાવે આપણને કે આ લીંબુમથી કલમ જે રીતથી બનાવાય. મેં આવું નથી બોલી. હા, મેં તો ખાલી કલમ બોલી હતી. તો પછી કલમ જ આવે ને ભાઈ લખવાની. એટલે મીઠી છે ને
એ મેં બરાબર યુટ્યુબ પર જોયું કે આ ઓબાની કલમ જેવી રીતથી બને, લીંબુની કલમ જેવી રીતથી બને. તો આ કલમ મારે છે ને જાતે બનાવી અને છોડ રોપવા છે. પછી શું કરવાનું? આપણા વાડામાં રોપવા નહીં, હા, રોપવાના ને. પણ એના માટે એક પ્રોબ્લેમ છે. એ કયો પાછો પ્રોબ્લેમ? પ્રોબ્લેમ એટલે બહુ મોટો પ્રોબ્લેમ નહીં, પણ મીઠી આપણે કોઈ પણ કલમ બનાવવા માટે માતૃ છોડ હોવો જોઈએ. હા, નહીં? માતૃ છોડ એટલે જેની પરથી આપણે કલમ બનાવવાની ને. હા, તો આપણે લઈ આવીશું એવું તૈયાર? એવો તૈયાર તો કઈથી લાવીશું, પણ મીઠી છે ને મારી ફોઈન ત્યાં ગાડી છે ને વાડી છે. હા, વાડી તો અસલ છે, પણ એ તો બહુ દૂર છે. હા, અરે દૂર ભલે છે, પણ મેં એવું વિચાર્યું છે કે આપણે બે છે ને આ મારી ફોઈન ઘેર મહેમાન ગતિ કરવા જતા રહીએ. હા, જઈએ. હા, બહુ દિવસ થઈ ગયા. હા, અને ફોઈબાને કહીએ કે ફોઈબા તમારે ત્યાં વાડામાં જે પેલી લેંબી છે ને મસ્ત મસ્ત લેંબો લાગે છે, તમારે ખેતરની અંદર પેલા આંબા છે કલમી, એમાં કેરીઓ મસ્ત લાગે છે, તો તમારા આંબા પર ને લેંબી પર અમારે કલમ બનાવી છે. અને પછી ધીરે રહીને થોડી કેરીઓ માંગજો. હા, એ તો ભાઈ ફોઈ કઈ કોને ભત્રીજાને વગર માગે હાલે. ના, પેલી એમને તો કેટલી મોઘામાંની કેરી છે એટલે. અરે પણ એ તો આપણે જતા નહીં એટલે આપણે ફાવતા નહીં, જઈએ તો મળે ને. એટલે થોડી વધારે માંગવાની એમ. આમાં મીઠી છે ને મીઠા ઝાડનું મૂળ કોઈ દાડ કઢાય ના. ઠેલું ભરી આપે તો સારું ને. આ મેં કહ્યું ને મીઠા ઝાડનું મૂળ ના કઢાય. આપણે ઓંબાની કેરી હારી લાગે એટલે ઓંબાની કેરીઓ ખવાય, પણ એનું મૂળ ઉખેડીને ના ખાઈ જવાય, નહીં તો આંબો હુકાઈ જાય. સમજી? મારે તો કઈ મૂળ ઉખેડીને ખાવું છે, મારે તો કેરીઓ જ ખાવી છે. એટલે પણ આ વાત કહેવત એવી છે કે મેઠા ઝાડનું મૂળ ના કઢાય, એટલે કોઈ આપણને 2-5 કે 10 કિલો કેરી આલતું હોય ને એની વાડીને થયેલી, એ પાછી મફત, તો એમાં પાછી લોભ કરીને વધારે ના મગાય, નહીં તો પછી બીજા વર્ષથી જે મળતી હોય ને એ બંધ થઈ જાય. તો આપણે નહીં જવાનું ને બીજા વર્ષે, આપણે નહીં કેરીઓ લાગી જાય. હા, બીજા વર્ષે આપણે કેરીઓ લાગશે, પણ મીઠી સંબંધ બહુ મોટી વસ્તુ છે, બરાબર ને? હા, સંબંધ મોટી વસ્તુ. પછી કાલે આપણે ઘેર કેરીઓ લાગશે અને પછી મીઠી તારા ભાઈનો સોરો આવશે કે ભાઈ મીઠી ફોઈને ઘેર જઈએ. મારે તો બધી વેચવામાં જ જવાની છે. હા, તો વેચવાની તો બરાબર છે, મારી ફોઈને ઘેરથી મફત લાવો છો ને પછી તમારે તમારા ભત્રીજાને મફત નહીં આલવાની. એ વેચવામાં એટલે બધાને આપવામાં જ જવાની છે. હા, વેચવામાં. હા, બજારમાં વેચવાની વાત નથી, સગાવાલાને આપવામાં જ જવાની છે. વેચવામાં. હા, બરાબર છે. આ કંઈક આપણી ગુજરાતી ભાષા એવી છે ને, વેચવામાં અને વેચવામાં જ ફરક પડી જાય છે. હા, તમે ઊંધું સમજ્યા. બરાબર છે. એટલે એ વેચવાની બરાબર છે, પણ પેલી વાત કહીને આપણે ફોઈ કેવું કરે છે, મારો ફોઈ ખાસ કહી કે ભાઈ 10 કિલો ખાવા આલે ભત્રીજા, પણ બાકીની બધી વેચે છે. હા, વેચે તો બહુ વેચે, બહુ પૈસા કમાય. કારણ કે ભાઈ મેઠા ઝાડનું મૂળ ના કઢાય, એટલે કે ભાઈ આપણે કોઈ પણ માણસ પાસેથી વધારે લોભ ના કરાય, અને આપણે કોઈને દોન કરીએ તો માપનું દોન કરાય. હા, માપનું કરાય, નકર ટેવ પડી જાય પછી. કારણ કે આપણે કમાવા સારું તો આંબા રોપ્યા હોય, લેંબુ રોપી હોય, અને પછી બધાને મફત આલાલ કરીએ તો પછી આપણે ઘરચી રીતથી ચલાવવાનું. આ તો પેલું મીઠું મીઠું બોલે ને, મીઠી તાર તો કેટલી સરસ કેરીઓ છે. એ તો બધા કશું જોઈતું હોય ને તો મીઠું બોલે, પણ આપણે છે ને જીવનમાં ના કહેતો શીખવાનું. પછી ખોટું લાગી જાય તો ભાઈ એક હદ સુધી આપણે મદદ કરાય, પણ પછી એનાથી વધારે કોઈ લોભ કરવાની વાત કરે ને તો પછી ભલે ખોટું લાગે, ના કહેતો શીખવું. હવે તો મારે શીખવું જ પડશે. તો મીઠી આ તો બધી બહુ વાત થઈ ગઈ. તો આજના કાર્યક્રમની અંદર છે ને આ કલમ બનાવવાની પદ્ધતિ એના વિશે જે માહિતી મેળવવાની છે એ માહિતી આપણા શ્રોતા મિત્રોને આપવાના છે ડૉક્ટર નિહાલસિંહ, કે જેઓ કેન્દ્રીય બાગાયત સંશોધન કેન્દ્ર વેજલપુરથી આવે છે અને તેમની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે ગોધરા આકાશવાણીના કાર્યક્રમ વડા મૌલિન મુનશી સાહેબ. किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी हमारे श्रोताओं और किसान भाइयों को मौलिन मुंशी का नमस्कार। दोस्तों, हमें आजकल जो पत्र मिलते हैं, आपके खत मिलते हैं, आपके फ़ोन भी आते हैं, इसमें आपने बताया कि अगर हमें नर्सरी डालनी है तो इसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए कि हमारे पास ज़मीन भी है और हमारे पास हाईवे के टच ज़मीन है, तो हमें एक नर्सरी खड़ी करनी है तो हम पौधे कहाँ से लाएंगे, कौन कौन से पौधे लाए। तो हमने सोचा कि चलो आपके ये जो बात है इसके बारे में मार्गदर्शन के लिए आज हमने हमारे आकाशवाणी स्टूडियोज़ में निहाल सिंह साहब को इनवाइट किया है, जो मुख्य तकनीकी अधिकारी है केंद्रीय बागायत परीक्षण केंद्र वेजलपुर के, और हम उनसे ये बारे में बात करेंगे। निहाल सिंह साहब, आपका आकाशवाणी में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा सर, आप अभी बताएंगे, आज हम नर्सरी के बारे में बात करने वाले हैं जी। तो अगर किसी
खेडूत भाई को जी नर्सरी खड़ी करनी है जी। तो पहले से बात कर तो कहाँ ज़मीन लेनी चाहिए और कैसी ज़मीन होनी चाहिए? इसके लिए सर यदि आपको सब नर्सरी भी दो तीन तरह की होती हैं। एक फल झाड़ तैयार करने के लिए नर्सरी होती है और एक ऑर्नामेंटल प्लांट तैयार करने की नर्सरी होती है। तो मैं आपको यहाँ आज विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि फल वाले पौधों की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। क्योंकि फल वाले पौधे दो प्रकार से तैयार किए जाते हैं। एक तो बीज के द्वारा, जिनको बीजी किस्म के पौधे कहते हैं, जिसको कि खेडूत भाई आराम से तैयार कर लेते हैं। लेकिन वो जिस गुणवत्ता के पौधे चाहते हैं, जिस जाति के पौधे चाहते हैं, जिस किस्म के पौधे चाहते हैं, उनको बीज द्वारा तैयार किए पौधों से किस्म प्राप्त नहीं होती है। इसलिए उनको दूसरा तरीका है कलमी पौधे तैयार करना। तो आज मैं अपने खेडूत भाइयों को बताऊंगा कि कलमी पौधे किस तरह से तैयार किए जाते हैं एवं कलमी पौधे खरीदते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम सर बात करते हैं कि कलमी पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं। कि एक तो पौधे सीड से तैयार किए जाते हैं, दूसरे कलम से किए जाते हैं। तो कलमी पौधों के लिए पौधे तैयार करने के लिए पहले हम बीज के द्वारा पौधे को नर्सरी में तैयार करते हैं। वो छोटी छोटी ब्लैक बैग होती है। ब्लैक बैगों में तैयार कर लेते हैं। या कुछ पौधों कोई नर्सरी ऐसी होती है जिनको को सीड बेड बना के उसमें डाल देते हैं। जब वो 15 से 20 दिन या एक महीने के हो जाते हैं तो उन पौधों को उखाड़ के पॉलीथीन बैग में शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद उन पर कलम करते हैं। मैं आपको विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा कि आम के पौधे तैयार करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है और क्या क्या स्टेज होती हैं। तो आम के पौधे तैयार करने की 3 स्टेज होती हैं। एक तो आप गुठली जमीन में डालेंगे, उसका अंकुर तैयार हो जाएगा, उसी पौधे को निकाल के थैली में लगा देंगे। इसके बाद उस पर कलम कर देंगे। तो इसे कहेंगे स्टोन वुड ग्राफ्टिंग। एक होता है कि जब पौधे को थैली में बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद उसकी उम्र 1 से 1.5 महीने हो जाएगी। यानी कि जो पहली उसकी ग्रोथ होगी वो उसके पत्ते तांबे जैसे होते हैं। इसके बाद सेकंड ग्रोथ लेता है तो उसके पत्ते नीचे के ग्रीन हो जाएंगे और ऊपर के तांबे जैसे पत्ते होंगे। तो उस स्टेज के लिए कलम के लिए तैयार हो जाता है। और तीसरा होता है हार्ड ग्राफ्टिंग, जो कि 1.5 या 2 साल के पौधे पर किए जाते हैं। खेडूत भाइयों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमको बड़ा पौधा चाहिए। लेकिन उन किसान भाइयों को मैं विशेष रूप से सलाह देना चाहूँगा कि आप पौधे की ऊंचाई न देखें, पौधे पे ग्राफ्ट कितने ऊंचाई पे किया गया है उसको देखें। क्या करते हैं कि उसको ऊपर जमीन से काफी ऊपर जाके ग्राफ्ट कर देते हैं, जिससे पौधा देखने में ऊंचा लगता है, बड़ा लगता है। लेकिन वो रियली पौधा ऊंचा नहीं है और नहीं वो लगाने लायक है। जो हाइट है वो जमीन लेवल से 15 से 22.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बराबर। यह 15 से 22.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कलम किया गया है तो पौधा आपका सबसे बढ़िया रहेगा। या 3 फीट या 2.5 फीट या इससे अधिक पर ग्राफ्ट करते हैं तो पौधा देखने में तो बड़ा लगेगा, लेकिन जो नीचे का भाग है वो देसी है। और इतने ऊपर ग्राफ्ट करने के बाद कभी जब बाबा जोड़ा आएगा तो आपका ग्राफ्ट फट जाएगा और आपका पौधा नष्ट हो जाएगा। बराबर। इसलिए पौधों को तैयार करने के लिए 15 से 22 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ग्राफ्ट हो। ग्राफ्ट देखना है। कभी कभी अमुक किसान भाई क्या होते हैं कि ग्राफ्ट होता है, पट्टी बंधी हुई होती है और उसको लेके चले जाते हैं। लेकिन वो एक्चुअल में पौधा ग्राफ्ट है या नहीं है वो उस जॉइंट को जरूर देख लें। क्योंकि जब हम पौधे पर ग्राफ्ट करते हैं तो उस पर एक साइन लगा के लगाते हैं। वो साइन कभी कभी क्या होती है कि साइन मर जाती है। अच्छा। और उसके नीचे से देसी निकलना शुरू हो जाता है, तिरछा सा। और कुछ नर्सरी वाले उसी को दे देते हैं कि ये कलमी पौधा है। बराबर। इसलिए इसमें खास ध्यान देने वाली बात है कि पौधा खरीदते समय ग्राफ्ट कितनी ऊंचाई पे है वो देखा जाए, ग्राफ्ट सक्सेस है कि नहीं वो देखा जाए, उसका जॉइंट बराबर है कि नहीं है, या जॉइंट खुला भी रह जाएगा और पौधे की ग्रोथ अधिक होगी तो पौधा हवा तेज चलेगी तो पौधा फट जाएगा और मर जाएगा। इसके लिए जो किसान भाई अपने घर पर नर्सरी करना चाहते हैं उनको लिए
मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जैसे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मई महीने में आपकी कैरी आना शुरू हो जाएंगी, जून में बाजार में काफ़ी कैरी मिल जाएंगी। तो इसी जून के महीने में जैसे ही आपको देसी गुठली मिलती हैं, उन गुठलियों को या तो सीधे खेत में लगा दो जहाँ पर पौधा लगाना है आपको, या पॉलीथिन बैग में लगा दो, या आपको कॉमर्शियल स्केल पे करना है तो नर्सरी बेड करा के उनको लगा दो। वो पौधे आपके जब पानी देते रहे, पौधे निकल के आपके 5 से 6 इंच लंबे हो जाएंगे, उन पर 4-5 पत्ते कोमल कोमल हो जाएंगे। तो उन पौधों को यदि आपने नर्सरी में बेड में लगा के रखे हैं तो उनको उखाड़ के पॉलीथिन बैग में लगा दें, पॉलीथिन बेड में लगा दें। इसके बाद उसमें पानी वानी देते रहें, पौधा आपका सेट हो जाएगा। और उस पौधे की जो तने की मोटाई होगी वो करीब पेंसिल साइज की होनी चाहिए। बराबर। ठीक। इसके बाद अब जो खेडूत भाई इस पर कलम करना चाहते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हमें तो अथाना के लिए राजापुरी चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं हमें तो खाने के लिए केसर चाहिए। तो उनको इसलिए सलाह ये है कि उनके पास पहले से एक पौधा या तो केसर का लगा हुआ होना चाहिए अथवा तो राजापुरी का होना चाहिए। जो किसान भाई जिस वैरायटी का इच्छुक है वो उस पौधे के पास जाएगा, पौधे के चारों तरफ घूमेगा, उसमें से एक टहनी सेलेक्ट करेगा जिसकी मोटाई जो अपनी नर्सरी में लगा हुआ पौधा है उसकी मोटाई और टहनी की मोटाई सेम होनी चाहिए। और जो टहनी हमने सेलेक्ट की है वो किसी भी तरह की बीमारियों से ग्रसित नहीं होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ खेडूत भाई या किसान मित्र क्या गलती कर देते हैं, को नई सी चमकनी सी डाली देख के सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर डाली का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है और फायदेमंद रहेगा। या डाली का चुनाव गलत हो गया तो आप आगे पौधे तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा उनको कि जो डाली आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। और डाली वहां से काट देने की है? नहीं, अभी काटनी, अभी तो हम केवल पौधे पर जाके डाली का चुनाव ही कर रहे हैं। अच्छा, अभी वहां तक ही पहुंचे हैं? हाँ, अभी पौधे के पास पहुंचे हैं, पौधे के पास में जाके डाली का चुनाव कर रहे हैं, उसमें मोटाई देख रहे हैं और डाली की उम्र देख रहे हैं। एकदम नई कोप आती है उस डाली को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डाली की उम्र कम से कम 6 महीने पुरानी होनी चाहिए। अब हमने देख लिया कि हाँ ये हमारी डाली है, इसको हमारी जो मोटाई है हमारे नर्सरी के पौधे के बराबर है, इस पर कोई रोगों से ग्रसित नहीं है। उस डाली को हमने चुन लिया। उस डाली को चुनने के बाद अब हम करते हैं डिफोलिएशन, जिसे बोलते हैं डिफोलिएशन। तो आप सिकेटियर की सहायता, चाकू की सहायता से उस टहनी को, जो पत्ती होती है उन पत्तियों को काट देंगे, बिल्कुल यूं करके सारी पत्ती को काट के छोड़ आएंगे। अपनी आवश्यकता अनुसार डालियों को पौधे पर तैयार कर लेंगे। जितनी डाली की जरूरत होती है उतने पौधों पर उतनी डालियों का हम डिफोलिएशन कराएंगे। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मैं यहाँ पर ये कह दूं कि 15 दिन बाद जाओ या 20 दिन में डाली तैयार हो जाएगी, हो जाती है, लेकिन मैं किसान भाइयों को बिल्कुल उन्हीं की भाषा में बताना चाहता हूँ कि 15 से और 20 दिन का आप ध्यान न दें। आप 15 दिन के बाद डाली पेड़ के पास जाएं, जिस डाली को आपने डिफोलिएशन किया था यानी कि जिसकी पत्ती काट दी थी उसके डेटे लगे हुए थे, पहचानने के लिए उस डाली को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से यों करके टबोका मारे। इस तरह से टबोका मारोगे तो जो उसके डीटे लगे हुए थे वो या डीटे अपने आप टबोका मारने से गिर जाते हैं नीचे, तो समझ लो कि आपकी डाली कलम करने के लिए तैयार है। या तो वो डीटे नहीं गिरते हैं तो जबरदस्ती से न गिराएं। अच्छा। कृपया 2-3 दिन का और इंतजार करें, दोबारा जाएं, इसके बाद फिर डीटे मारें और वो नीचे गिर जाते हैं तो आप डाली को काट के लाएं। बराबर। तो अपने पास नर्सरी में पहले से देसी पौधा तैयार था, हमने अपनी वैरायटी का सिलेक्शन कर ही लिया था कि हमें कौन सी लगानी है, डाली का चुनाव कर लिया था। अब इस डाली को काट लाएंगे, पेड़ से काट के उस डाली को नर्सरी के पास ले आएंगे। अब इस डाली की जो लंबाई होती है वो 6 से 8 इंच के करीब होती है। ठीक। इसके नीचे वाले भाग को तेज चक्कू की सहायता से छीलेंगे और दूसरी तरफ से छीलेंगे।
इसका छिलका की जो लंबाई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती। इसी तरह से जो अपनी नर्सरी में जो पौधा रखा हुआ है देसी, उसके ऊपर से कैंची से टोच को काट देंगे, जिसकी हाइट मैंने पहले ही बताई थी, जमीन से 15 से 22.5 सेंटीमीटर रहेगी। उस पौधे को 15 से 22.5 सेंटीमीटर के बिल्कुल काट देंगे और बिल्कुल डंडी जैसा पौधा खड़ा रह जाएगा। तो अब इस पौधे को तेज चाकू की सहायता से इसके बीचों बीच एक चीरा लगाएंगे। ये चीरा भी 2 से 2.5 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें 2 से 2.5 सेंटीमीटर का ये चीरा तैयार है। उधर अपने पास छिनी हुई डाली तैयार है। इसको इसमें फिट करके इस तरह से घुसा देंगे और पॉलीथीन पट्टी से लपेट देंगे। तो इसलिए वैसे इसको कहते हैं बीनियर ग्राफ्टिंग, लेकिन अपनी शुद्ध गुजराती भाषा में इसे कह देते हैं फाचड़ कलम। फाचड़ कलम। फाचड़ कलम, ठीक। ये बांध देंगे। इसके बाद पौधे में पानी देते रहेंगे। बांधने के बाद ये ध्यान रहे हमें कि ये कलम बांधी है, उसके नीचे का जो पोर्शन है 15 से 22 सेंटीमीटर का, उसके नीचे कोई देसी फूट नहीं आनी चाहिए। यदि हम ये सोचेंगे कि देसी फूट और चलने दो, तो वो नीचे जो देसी फूट आ रही है वही पौधे की खुराक को खींचती रहेगी और हमने जो डाली चौंटाई है, जिसे हम सायन कहते हैं, उसको खुराक नहीं मिलेगी तो वो हमारी सूख जाएगी और हमारा देसी पौधा तैयार देसी रह जाएगा। ओके। इसीलिए जब तक वो अपनी हमने जो डाली चौंटाई है वो फूटना शुरू नहीं होती तब तो नीचे से कुछ नहीं निकालते रहना चाहिए। बराबर। इसके बाद धीरे धीरे आपकी डाली को फूटना हो जाएगी। इसका 2 पत्ते आएंगे, 4 पत्ते आएंगे और इसके बाद आपका कलमी पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक। लेकिन कलमी पौधा यहाँ तक तो तैयार हो गया, लेकिन जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा तो जो हमने जो देसी और कलमी की जो जॉइंट था वहाँ पर जो पट्टी बांधी थी वो पट्टी अंदर घुसना शुरू हो जाती है। तो अमुक टाइम क्या होता है कि कुछ नर्सरियों में थोड़ी लापरवाही कर दी जाती है कि उस पट्टी को, पॉलीथीन पट्टी को काटा नहीं जाता है तो पौधे को जाके लगा देते हैं और लगाने के बाद जैसे ही वो साइन से पौधा ग्रोथ लेता है, बड़ा होता है और जरा बाबा जोड़ा या तेज हवा आती है तो पौधा वहां से टूट जाता है क्योंकि पट्टी उसके है। इसलिए जब आप अपनी जो कलम यहाँ पर है ना पूरी तरह सेट हो जाए तो उस समय उस पॉलीथीन पट्टी को ब्लेड की सहायता से काट के खोल देना चाहिए। बराबर। इस प्रकार जो पौधा तैयार होगा वो आपका कलमी पौधा तैयार होगा। आपने जिस जाति का की कलम बांधी होगी उसी जाति का होगा। आपने केसर की बांधी हो तो केसर का मिलेगा, राजापुरी की बांधी हो तो राजापुरी का। कुछ लोग ऐसा भी प्रयोग करते हैं कि एक जो आंबा रहता है उसके पर 3-4 अलग अलग प्रकार की वो ग्राफ्टिंग करते हैं ताकि एक ही वृक्ष पे अलग अलग 4-5 प्रकार की कैरी आ जाती है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन ये वहाँ पर होता है जहाँ पर आपका पहले से ही आम का पौधा है और काफ़ी पुराना है, जिसे टॉप बर्किंग कहते हैं, जिसकी अलग अलग ब्रांच हुए पौधा है, जिसके अलग अलग ब्रांच हैं, उनमें से एक ब्रांच काट दी और जिस तरह की जो मैंने आपने पूरा प्रोसेस करके वहाँ कलम मिला दी तो एक ब्रांच मान लो आपने केसर का लगाया है तो केसर की हो जाएगी और दूसरी ब्रांच में जरा आपने राजापुरी मिलाया है तो राजापुरी की हो जाएगी और कुछ ज़्यादा शौकीन भाई हैं तो तीसरी पे उन्होंने दशहरी लगा दी तो वो दशहरी की हो जाएगी। पर ये कॉमर्शियल नहीं है, ये शो के लिए है, एक्सपेरिमेंट के लिए है, इसे टॉप वर्किंग कहते हैं। ये सर मुझे लगा कि कलम बनाना बहुत टेक्निकल चीज़ है क्योंकि सबको नहीं आता होगा। कलम बनाना तो बड़ा इजी है, ये टेक्निकल कुछ भी नहीं है क्योंकि इसमें 2-3 चीज में जो बार बार कह रहा था ना आपसे कि एक तो साइन का चुनाव करना, जो टहनी लाते हैं उसका चुनाव करना और दूसरा देसी पौधे को तैयार करना। इन दोनों की मोटाई सेम हो और जो आपका चक्कू है वो तेज हो। अब ऐसा न हो कि आपकी जो नीचे की साइन है उसकी कुछ पतली है। ये जो चप्पा बोले वो अपने जो किचन में यूज करते वही चप्पा रहता है कि या का विशेष प्रकार का रहता है? तो ये बडिंग एंड ग्राफ्टिंग नाइफ करके आता है, इसके अलग से ही। जो कॉमर्शियल करना चाहते हैं उनको बडिंग एंड ग्राफ्टिंग नाइफ और सिकेटिया रखना ही चाहिए। लेकिन कुछ किसान मित्र हैं जो केवल 1 या 2 पौधे पर ही करना चाहते हैं और उनके घर में चप्पा भी नहीं है, वो केवल दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से भी कर सकते हैं 1-2 में। तो ओहो वाह, तो आपने निहाल सिंह साहब बहुत बढ़िया बताया कि एक जो नर्सरी है
इसकी स्थापन कैसे किया जाए, उसका जो कलम है वो किस तरह से किया जाए, और दूसरे भी नर्सरी में छोड़ रख सकते हैं। कभी कभी है ना, जैसे मिर्ची, रिंगन, टमाटा, इनकी दरू डालते हैं। ठीक है, वो दरू डालते हैं तो दरू में उनका कोई आइडिया नहीं होता है कि हमें कितने एरिया में लगानी है और कितने क्षेत्रफल में दरू का क्षेत्रफल होना चाहिए, वो अड़कदम डाल देते हैं। तो उनसे लिए बड़ा ही मेरा सिंपल है कि जितने भी खेत में दरू लगानी हो उसका 1/20 भाग होना चाहिए। यानी आपको 20 बीघा में दरू लगानी है तो 1 बीघा में दरू लगाएं, बराबर। तो ये मोटी बात। दूसरी बात ये है कि वो बीज का ध्यान नहीं रखते। तो पौधे के ग्रोथ के लिए या मोटाई के लिए जो उनका हवा के लिए जो स्पेस चाहिए वो स्पेस नहीं मिलता है, और उसमें डैम्पिंग ऑफ करके बीमारी आ जाती है और वहाँ की वहीं गल जाती है। दूसरे कुछ लोग फूल की भी खेती करना चाहते हैं, नर्सरी में फूल के पौधे भी रख सकते हैं। फूल के पौधे भी लगा सकते हैं। फूल के तो ये सीजनल होते हैं, तो इनमें इतनी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो 3 महीने में आपकी नर्सरी तैयार हुई, 3 महीने का रखे 6 महीने खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो खेडूत भाइयों को दिक्कत आती है और सावधानी रखने वाली बात है वो फल वाले पौधे तैयार करने का। दूसरे कौन कौन से फल वाले पौधे रख सकते हैं नर्सरी में? जैसे आपका अभी मैंगो को बताया था, अभी आपका बेर का सीजन आएगा जिसमें आंख कलम करते हैं। आपका सीताफल आएगा जिसमें आंख कलम करते हैं। बिल्ली पत्थर आएगा जिसमें आंख कलम कर सकते हैं। आपका चीकू आएगा जिसमें आपका ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद जामुन है जिसमें ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ये सारे पौधे कलम के द्वारा हमारे केंद्रीय बागायत संशोधन के बैजलपुर की नर्सरी पर तैयार हैं। जिन किसी किसान भाइयों को नर्सरी की देखनी हो तो उनको नर्सरी देख सकते हैं, ये पौधे खरीदने हो तो खरीद सकते हैं। इसके लिए वो रूबरू आ सकते हैं या हमारे प्रधान वैज्ञानिक हेड ऑफ द स्टेशन है उनको पत्र लिख करके ये उनको वहाँ से पौधे, कलमी पौधे मिल सकते हैं। तो निहाल सिंह साहब, आज आपने बहुत ही बढ़िया हमें इन्फॉर्मेशन दिया हमारे किसान भाइयों को कि अगर उनको एक नर्सरी प्रस्थापित करनी है तो ज़मीन कैसी चाहिए, पौधे को तैयार कैसे किया जाए, किस प्रकार के फल फूल के पौधे होने चाहिए और कलम खास करके किस तरह से करनी चाहिए, सावधानी क्या रखनी चाहिए, इसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। आकाशवाणी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। મિત્રો, હમણાં આપ સાંભળી રહ્યા હતા ડૉક્ટર નિહાલ સિંહની મુલાકાત, જેમની મુલાકાત લઈ રહ્યા હતા ગોધરા આકાશવાણીના કાર્યક્રમવાળા મૌલિન મુનશી। કૃષિ મંત્રાલય ભારત સરકારના સહયોગથી આકાશવાણીના ગોધરા કેન્દ્ર પરથી આપ સાંભળી રહ્યા હતા ખેડૂત મિત્ર માટેનો ખાસ કાર્યક્રમ કિસાન વાણી। કાર્યક્રમમાં આપણી સાથે અમો હતા કેતન રાવલ તેમજ પારુલ રાવલ। કાર્યક્રમ અહીં પૂરો કરીએ છીએ, તો કાર્યક્રમથી છૂટા પડવાની આપશો રજા। રજા।